एक्सकेवेटेड मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके ज़्यादा नहीं, 2-4 एस्पेक्ट पे ही चैप्टर वाइज चलेंगे। ये आर्टिकल हमने पहले ही आप लोगों को भेज रखा है। So whenever you try to conserve the excavated site, and this is the Inteneco, stucco and mosaic work. I have already shown you in the excavation of Harappa, you will get the numbers of tiles and decorative features in the excavation. So that how to that kind of object how to conserve. So whenever we talk about the deterioration is a combined action of physical, chemical and biological agent, and the things get deteriorated, and I have already discussed it and discussed that how these three things are differently act and the object is react accordingly. So here I am talking about the painting, stucco and mosaic. So there is a two technique for conservation. One is called intervention or curative technique, another is the called preventive. So here you have to keep in mind the intervention or interactive technique for the restoration of the objects. So here you can see the product is wood, textile or leather. All three are imperishable in nature. So you will get the evidences in excavation. Wood, textile and leather both are converted in a muddy form and in a soil form. So the first brocaded item in textile, that life is longer in terms of the textile. So you will get the pattern of brocaded item of a particular product of the textile. So some part of the wood or leather may be decorated material, where you will get the in evidence. So the conservation technique you applied in excavation, that is called in situ conservation. So in situ conservation you have to do one thing. So you can you have to use the PVA, polyvinyl acetate. Do you understand this? Polyvinyl acetate, PVA. So for example, see, this is the PVA, polyvinyl acetate, right? And it is the polyvinyl acetate is a polymer of vinyl acetate, So this is the technique and how it acts. So you can see. So if there is an object in a fragment part of a textile or in a brocaded item, so method in live class I have discussed the lifting of the object. So you have to lift by the block lifting method. So before you lift the this piece of textile or leather piece, and this is in a fragmental part, so you have to apply 5% of PVA over there, and then you can uplift it. So what is PVA? PVA is just like a thinnest plastic form which laminate or consolidate. So it's a kind of full lamination. So it laminates the fragment part and you can uplift it. So this is the method where you can use. So the initial intervention you have to do like this. Then next, the treatment of decorative object. It is under 3 phase: initial cleaning, partial extraction of soluble soil, and finally consolidation. So any treatment of archaeological find
you have to do 3 steps. One is cleaning, another is partial extraction of soluble salt and consolidation parts. So here the initial cleaning you have to clean by the dry method or the wet method. In dry method you clean with the mechanical cleaning by different use of brush, different kind of brush, scalpel like a small you can say the spoon. Then the object is cleaning directly. न्यूबलाइजेशन के थ्रू भी क्लीनिंग किया जाता है, भाप के थ्रू। एंड उसके बाद हम बेड क्लीनिंग भी करते हैं, तो उसमें आप पानी के अंदर उसको सिंक करा देते हैं। जैसे बहुत सारा आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको वाटर के अंदर वो सस्पेंडेड कराते हैं और उसमें मिस्ट टेक्निक होता है और भी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, वो वाटर के अंदर वो सील करेंगे वो खराब हो जाएगा। तो हेयर यू हैव टू यूज न्यूबलाइजेशन। न्यूबलाइजेशन इज ए मेथड, वो भाप के जैसा उसमें से निकलता है और उससे उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। बिकॉज हेयर योर प्रोडक्ट इज टेक्सटाइल और वुड और लेदर, सो हेयर यू हैव टू act differently. Then the soluble salt you have to also soluble salt के रिमूवल के लिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें आप लोगों को शेयर कराना जरूरी है। यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने एक pH पेपर बनाया था और इसको हम लोग यहाँ pH स्केल बोलते हैं। तो ये 1 से लेकर 7 तक होता है, ये एसिड होता है। ध्यान से देखिएगा इसको इस स्केल को। और 7 वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है, N होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो बेस होगा 14 तक, राइट। सो अब क्या करना है आपको, ये देखिए अगर ये बेस है तो इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर एसिड ज़्यादा है तो हम बेस को कर देंगे तब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ कंजर्वेशन। सो आपको यहाँ टेस्ट क्या करना है कि पार्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट। तो साल्ट जानते हैं आप, साल्ट कितने तरह के होते हैं, कोई बताएगा मुझे? नहीं बताएगा, क्योंकि मैं मुक्स क्लास कर रहा हूँ और लाइव क्लास में भी आप लोग नहीं बताते हैं। सो इट्स हार्डली मैटर। सो यहाँ पर जो है वो साल्ट जो है, एक को बोलते हैं हम लोग क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl, ओके, एंड Cl। और दूसरा होता है वो होता है कार्बोनेट, साल्ट कार्बोनेट। और तीसरा इसको बोलते हैं CO, इसको बोलते हैं CO। और तीसरा जो होता है वो उसको हम लोग CO, इसका मूल जो है रेडिकल CO3। एंड तीसरा होता है नाइट्रेट। सो 3 तरह के साल्ट हमारे को जनरली मिलता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हमें रिमूव कराना है। तो जो क्लोराइड है वो सोल्यूबल होता है, बाद बाकी जो है वो क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है। तो इस तरीके का है साल्ट जो है 3 तरीके का है, क्लोराइड, कार्बोनेट एंड सल्फेट। तो ये SO4, Cl एंड CO3। तो ये 3 तरह के साल्ट में जो आपके पास जो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादातर हमें क्लोराइड के फॉर्म में डिपोजिशन मिलता है। तो उसको रिमूव करने के लिए ये क्या है, साल्ट जो है वो एसिड इन नेचर है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, एसिड का अटैक हुआ है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आपको ऐड क्या करना है, बेस, ठीक। तो यहाँ पे हम जो पेपर पल्प यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, पेपर पल्प मेथड, पेपर पल्प मेथड का यूज करेंगे हम लोग और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देंगे। तो पेपर जो है वो बेस इन नेचर होता है, प्लेन जो ब्लॉटिंग पेपर होता है। तो उसमें उससे वो क्या है, एसिड का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। सो यहाँ पे
पे एक पेस्ट बना लेते हैं पेपर के बहुत सारे टुकड़े करके और उसको उसके ऊपर डाल देते हैं और लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका वो उसमें साल्ट का रिमूवल हो जाएगा। और ये इसको फिर कंसोलिडेशन करने के लिए फिर हम जो है वो इसके ऊपर अकॉर्डिंगली जो भी एप्रोप्रिएट मटेरियल होता है उससे हम उसको जो है जाइलिन से करते हैं, उसको कंसोलिडेट कर देंगे। द अदर कंसोलिडेंट आल्सो अवेलेबल इन रिसेंटली इन मार्केट डिफरेंट। सो द कंसंट्रेशन जाइलिन का जो कंसंट्रेशन है वो 2 to 10% अकॉर्डिंगली द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी करेगा। सो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंसोलिडेशन एंड दिस इज द नेम ऑफ ट्राई क्लोरोइथेन और क्लोरोथीन और जाइलिन। इससे हम इसको कंसोलिडेट करते हैं। सो दिस इज नॉट डीप कंजर्वेशन, दिस इज द फर्स्ट और बेसिक ऑफ द कंजर्वेशन वेयर you can treat the wood or you can treat the textile or leather product which is you will get in the fragile condition during the excavation. So if the surface are very light of the cloth, glue and same resin but the greater concentration 15 to 25%. So ये सारा चीज हमें वो उसके लिए देना होता है। फिर वो इसको हमें बचाना होता है हाई ह्यूमिडिटी से। हाई ह्यूमिडिटी क्या करता है कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अगेन आई रिपीट, हाई ह्यूमिडिटी लीड टू बायोलॉजिकल अटैक और जूलॉजिकल इंसेक्ट्स अटैक्स ज़्यादा होते हैं। तो ये हाई ह्यूमिडिटी जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्वेल करेगा, उसमें तरह तरह के फफूंदी, फंगस और ये सारे चीज़ें का प्रॉब्लम होगा। तो इससे हमें बचाना पड़ता है ये लेदर प्रोडक्ट को और टेक्सटाइल प्रोडक्ट को इन एक्सकेवेशन। सो ये हमें ध्यान रखना है। अभी आप लोग जानते होंगे कोविड में एक नया फंगस आ गया है, वो बायोलॉजिकल अटैक होता है ड्यू टू हाई ब्लैक फंगस, येलो फंगस और ग्रीन फंगस। सो दैट काइंड ऑफ अटैक ऑल्सो फाइंड इन दी टेक्सटाइल ऑब्जेक्ट ऑल्सो। सो प्रोटेक्शन आफ्टर एक्सकेवेशन। सो जब भी हम लोग टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन देते हैं और टेम्प्रोरी बैक फिलिंग ऑफ अर्थ करते हैं, जब भी आप एक्सकेवेट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये वाला। तो कोई भी जो अर्थ एक्सकेवेशन होता है तो उसमें टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन शेल्टर का लगाते हैं। ये बहुत सारे साइट पे आपने देखा होगा कि कोई भी मड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे पेंटिंग है या मड के टाइल्स है और वो टाइल्स लगे या डेकोरेटिव फीचर है जिससे पेंटिंग है और बारिश से वो बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए टेम्प्रोरी शेड हम लोग दे देते हैं। एग्जाम्पल आपको शेड का मैं बताता हूँ। 2-3 जगह है। एक तो खारवेल का जो इंस्क्रिप्शन है जो बहुत फेमस है, उसके ऊपर टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन दिया गया है। वैशाली के स्तूप पे टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन ऑफ शेल्टर दिया गया है। फिर वो अजंता में जो धौली का जो इमर्जिंग एलिफेंट है मॉडर्न पीरियड का, वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है शेल्टर के थ्रू। So in India we have a large number of use of protection of a particular archaeological site by providing the shelter. दूसरा क्या करते हैं हम लोग कि टेम्पररी प्रोटेक्शन ऑफ बैक फिलिंग ऑफ अर्थ करते हैं। ये आपको यहाँ पे देखना ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि बैक फिलिंग कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पहले पता है कि एक्सकेवेशन जब किया था तो इसको कोई किसी भी सरफेस को स्क्वायर को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 10x10 में। तो ये एक 10x10 ये 10x10 में इसको डिवाइड किया था और ये एक 10 जो है कितने में डिवाइड हो जाता है? 2x5 बाई ईच। तो ये 1, 2 और 3 और 4 हो जाता है। तो ये जो एक्सकेवेटर एंड दिस इज कॉल्ड बाक और दिस इज द मेन बाक और उसके बाद ये सब बाक होता है। तो इस तरीके से एक्सकेवेशन हुआ है और इसी में हमारा क्या प्रोडक्ट निकल रहा है? टाइल्स, पेंटिंग और ये। तो इसमें अगर ये है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पहला शेल्टर दे देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? इसको हम लोग इसके ऊपर ना अलग अलग एक कोट डाल के प्लास्टिक का, मिट्टी का और इसको हम लोग टेम्पररी फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में। ये क्या है?
लगा करके और मिट्टी पे स्प्रेड कर देते हैं। फिर लकड़ी का उसमें एक रिजिड सपोर्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मोकुलाइट्स। ये लाइटर मटेरियल होता है और ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। देन इसके ऊपर क्ले का 15 to 20 सेंटीमीटर डीप एक लेयर चढ़ा देते हैं। देन एक प्लास्टिक नेट डालते हैं। फिर ये इस तरीके से फिर एक बेंटोनाइट क्ले आता है जो कि बहुत ही फाइन होता है। तो ये रेन वाटर के पेनिट्रेशन से बचने के लिए इसको हम लोग डालते हैं। और ये अर्थ के फाइनल फिलिंग और ट्रेन पे सराउंडिंग डेप्थ में लेते हैं। सेलेक्टेड प्लांटिंग एंड शैलो रूटेड प्लांट इसके ऊपर हम लोग प्लांट कर देते हैं। और ये है आपका रोटेट क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा जो है पेंटेड पार्ट है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक प्लास्टिक का नेट डालेंगे। वर्मोकुलाइट ये कुशनिंग मटेरियल, यू कैन से एक कुशनिंग मटेरियल है जो एक कुशन के जैसा काम करता है। और ये वाला जो अपराइट पार्टीशन है वो इस पे डाल देते हैं ताकि इसके ऊपर ये यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे कि ये जो है ये वर्मोकुलाइट है, राइट। और ये जो है ये जो है आपका पार्टीशन है। तो पार्टीशन लगाने में ये आपका स्टैंड लगाना है, ये लकड़ी का है, ये आपको ड्रॉ करना है। फिर इसके ऊपर में क्या है, हम लोग लगाते हैं प्लास्टिक का नेट लगाते हैं। फिर प्लास्टिक का नेट 2 बार, इसके बाद ये क्ले का लेयर देते हैं, फाइन क्ले का लेयर देते हैं। एंड फिर इसको सबसे ऊपर में बेंटोनाइट शीट डालते हैं और फिर इसके ऊपर अर्थ को स्प्रेड कर देते हैं ताकि ये इसके अंदर में जो आपका पेंटिंग है वो सुरक्षित रह सके। तो पेंटिंग को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 काम कर सकते हैं। एक हम उसको शेल्टर दे सकते हैं और दूसरा जो है रिफिलिंग कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने 4 पार्ट सीखा है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि इंटरनेको और वो मड प्रोडक्ट, पेंटिंग, लेदर, वुड और टेक्सटाइल को कैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया जाएगा। और दूसरा है कि बैक फिलिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन को कैसे करते हैं। आप लोग एक पूरा देख करके फिर इसके ऊपर नोट्स बनाइए और